Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, static electricity, electric charges at rest. Introduction. Sometimes you may have experienced a stinging sensation when you touch a metal doorknob. In dark, you can see sparks coming out of woolen or nylon clothes when they rub against your body. You may have also heard a crackling sound while combing dry hair with a plastic comb. What causes these sparks and the crackling sound? Whatever you experienced was electricity. It may also give you a shock if you walk on a carpet and then touch a metal door knob. It enables you to rub a balloon on your sleeve and make it stick to the wall. If your body, after being rubbed, attract bodies, it is said to be charged with electricity or electrified. It has acquired a property called electric charge. In such a body, the charges do not flow but are at rest. Hence, this electricity is called static electricity. It is easy to electrify rods made of ebonite, glass, plastic, etc. by rubbing them with wool, silk or flannel. देखिए कई बार ना आपको जैसे कि आपने मेटल का जो डोर नॉब होता है उसको अगर आप जैसे टच करते हैं ओके तो कई बार ना स्टिंगिंग सेंसेशन आप फील करते हैं और कई बार जैसे अंधेरा है अंधेरे में जैसे आपने कभी देखा होगा वुलन या नायलॉन क्लोथ्स को जब वो रब होते हैं ना आपकी बॉडी के अगेंस्ट उनमें स्पार्किंग होती है स्पार्क्स आपको नज़र आते हैं. इसके अलावा कई बार जैसे कि आप अपने ड्राई हेयर को कॉम करते हैं ना प्लास्टिक कॉम से तो क्रैकलिंग साउंड आते हैं. अब ये स्पार्क और ये क्रैकलिंग साउंड क्यों होते हैं देखिए तो जो भी एग्जाम्पल्स अभी आपको दिए गए इसमें आप जो है इलेक्ट्रिसिटी वॉज एक्सपीरियंस्ड. ये आपको शॉक भी दे सकता है अगर आप कारपेट पे चलते हैं और उसके बाद आप मेटल डोर नॉब को टच करते हैं. जैसे कि अगर आपने बलून को रब किया अपनी स्लीव पे तो उसके बाद आप इसको वॉल पे स्टिक कर सकते हैं. तो कोई भी बॉडी जब रब की जाती है वो बॉडीज़ को अगर अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब वो चार्ज हो गई है इलेक्ट्रिसिटी के साथ या फिर वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है. इससे एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ऐसी बॉडी में जो चार्ज है वो फ्लो नहीं करते बट वो रेस्ट पे होते हैं. तो इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द चार्जेस आर एट रेस्ट. ओके अब देखिए रॉड्स को इलेक्ट्रीफाई करना बड़ा आसान होता है जो आपकी इबोनाइट ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है. और कैसे करते हैं अगर हम इनको रब करते हैं वूल सिल्क या फ्लैनल से. 8.1 द टू चार्जेस. In previous classes you have learned that an atom is the smallest unit of matter. All matter is made up of atoms. These are made of even smaller particles called subatomic particles which include protons, neutrons and electrons. Both protons and electrons have a basic property called electric charge. However, the kind of charge is not the same for both the particles. Protons have a positive charge which is indicated by a plus symbol. Electrons have a negative charge which is indicated by a minus symbol. Neutrons are neutral. They have no electric charge. देखिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का और जितने भी मैटर है वो एटम से बने बट इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आपके आते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब प्रोटॉन जो है आपका उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जो प्लस साइन से हम शो करते हैं एंड आपके इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन होता है एंड जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं मीन्स उनमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है. राइट. Charge and force, behavior of charges. When charged particles come near one another, they give rise to two different forces. A force is a pull or push on an object. A force that pulls objects together is a force of attraction. This force of attraction exists between oppositely charged particles. So, negatively charged electrons are attracted to positively charged protons. A force that pushes objects apart is a force of repulsion. This force of repulsion exists between particles of the same charges. So, negatively charged electrons repel one another just as positively charged protons do. Hence, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Electric charges behave according to this simple rule. Observe the following activities to understand how electric charges behave. देखिए जब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें दो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं. आपको पता है फोर्स है पुल या पुश. ओके अब देखिए जो फोर्स से ऑब्जेक्ट को पुल करता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ओके अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव और आपका एक नेगेटिव होना चाहिए, एंड एक आपका होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये आपके सेम चार्जेस के बीच में होता है, मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ओके तो इसीलिए देखिए आपको पता है, ये आप पहले भी पढ़ के आए, चार्जेस रिपेल ईच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ओके, एंड जो अनलाइक होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। चलिए एक्टिविटी से समझते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव करते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक रूलर एंड रब इट विद अ वुलन क्लॉथ। द प्लास्टिक रूलर रिक्वायर्स negative charge. Suspend this ruler by a thread tied to its midpoint. Now rub a glass rod and charge it by rubbing it with silk cloth. The glass rod acquires positive charge. Bring the charged glass rod near the plastic ruler. The suspended plastic ruler is attracted towards the charged glass rod. This shows that unlike charges attract each other. अच्छा देखिए आपको यह करना है, एक प्लास्टिक का स्केल लेना है रूलर और इसको वुलन क्लॉथ से रब करना है, तो जो प्लास्टिक रूलर होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। फिर इस रूलर को सस्पेंड करना है एक थ्रेड से, फिर ग्लास रॉड को रब करना है और इसको चार्ज करना है इसको सिल्क क्लॉथ से, उस पर रब करेंगे। अब जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, अब चार्ज ग्लास रॉड को प्लास्टिक रूलर की पास लेके आएंगे, तो जो प्लास्टिक रूलर होगा ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट चार्ज है। तो इससे क्या शो होता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाउ डज समथिंग बिकम चार्ज? An atom has equal number of electrons and protons. The total negative charge is equal to total positive charge, so the atom is neutral. It has no overall charge. How do then objects such as balloons and strands of hair develop an electric charge if these objects are made of neutral items? The answer lies in the fact that electrons, unlike protons, are free to move. In certain materials, the negative electrons are only loosely held by the positive protons. These electrons can be separated easily from their atoms. अच्छा देखिए एक एटम के ना इक्वल नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, तो जो टोटल चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है वो टोटल होता है पॉजिटिव चार्ज के, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। ओके कोई इसमें चार्ज ही नहीं होता है, क्योंकि अगर +5 और -5 क्या होंगे, 0 हो जाता है, राइट। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बलून की बात करें या हेयर स्ट्रिंग की बात करें, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज को डेवलप करते हैं अगर ये न्यूट्रल एटम है तो आंसर ये है, देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो बहुत सारे मटेरियल्स में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं बाय द पॉजिटिव प्रोटॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना आसान होता है इनके एटम से। एक्टिविटी 2, टेक 2 rubber balloons and fill them by blowing air in them with your mouth. Tie their mouths with threads and suspend them. Rub both with a woolen cloth. Both the balloons acquire negative charge. Now hold both the balloons close to each other, but you will find that both the balloons which have like charges move away from each other. देखिए 2 रबर बलून्स लेने हैं और उनको एयर उनमें फिल करनी है, ओके फिर उनकी माउथ को टाई करना है, थ्रेड से उनको सस्पेंड करना है। दोनों ही बलून को आप रब करेंगे वुलन क्लॉथ के साथ, तो दोनों ही बलून्स में आपके क्या गए, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने सेम क्लॉथ से किया था तो ऑब्वियसली दोनों में सेम चार्ज आएंगे। अब दोनों बलून्स को आप होल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जो बलून्स है ना दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों में इक्वल चार्ज है, लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। Rubbing separates charges on objects. When 2 objects are rubbed together, one object loses electrons while the other object gains these electrons. The object that gains electrons has an overall negative charge, while the object that loses electrons has an overall positive charge. You should always remember that in an atom only electrons move and not the proton. तो देखिए जब रबिंग होती है ना तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा एक चीज़ कि सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं मूव करते, राइट। A neutral object develops an electric charge when it either gains or loses electron. Remember that. The following figure will help you understand what you have read. See, ये आपका न्यूट्रल बलून है, ओके दिस इज न्यूट्रल क्लॉथ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। नाउ दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज बलून, क्योंकि इसमें ये बिफोर रबिंग
रब करने से पहले था, एंड आफ्टर रबिंग क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, और ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोथ हो गया। पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके इसमें ट्रांसफर हो गए, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्जेस रह गए, राइट। नाउ अब देखिए आप क्या करेंगे, ये आपका नेगेटिवली चार्ज बलून है, ओके, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज एरिया है वॉल का, राइट। तो व्हाट विल हैपन, सी दिस इज नेगेटिवली चार्ज balloon and this is positively charged area of wall। अब क्या होगा आपका, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, देखिए रबिंग जो है चार्जेस को सेपरेट करता है, तो क्लोथ क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज उसको मिलेगा एंड बलून में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जबकि जो नेगेटिवली चार्ज बलून है, जब आप उसको वॉल के पास लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा इन द वॉल, एंड जो नियर बाय आपके पोर्शन होगा वॉल का, वो क्या हो जाएगा आपका, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। 8.2 static electricity. You have read that electricity depends upon the flow of electrons. In fact, electricity can now be defined as the energy associated with electrons that have been transferred from one place to another. You are familiar with electricity that flows through electric wires, but the movement of electrons is not always a continuous flow through a wire. Sometimes electrons may move from one object to another and then remain at rest. This type of electricity is called static electricity. The word static means not moving or stationary. Static electricity is the build-up of electric charges on an object. These electric charges build up because electrons have moved from one object to another. However, once built up, the charges do not flow. They remain at rest. देखिए आपने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड करती है अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो गई है, ओके। अब इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू फ्लो करती है उससे तो आप फेमिलियर है, बट जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता वायर के थ्रू। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से मूव हो जाते हैं दूसरे में, और कई बार वो रेस्ट पे रहते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब नॉट मूविंग। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बिल्डअप होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्डअप होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में। हाउएवर एक बार जब बिल्टअप हो गया तो जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं होते हैं, वो रेस्ट पे रहते हैं, राइट। 8.3 different ways of charging a body. An object can become charged with static electricity in 3 ways: friction, conduction, and induction. Number 1, charging by friction. Rubbing a balloon with a piece of cloth is an example of charging an object by friction. The motion of the cloth against the balloon causes charges on both objects to separate. As the electrons in the cloth are more loosely held than the electrons in the balloon, electrons move from the cloth to the balloon. This resulting charge on the cloth is positive. A negative charge is formed on the balloon. If an ebonite rod is rubbed with fur, friction separates charges on both. Electrons are transferred from the fur to the rod, which becomes negatively charged. The fur, which has lost electrons, is positively charged. If a glass rod is rubbed with silk, electrons are transferred from the glass rod to the silk. The glass rod is positively charged. The silk, which has gained electrons, is negatively charged. From the discussion, it follows that when two bodies are rubbed together, both become charged and the charges acquired by them are equal but opposite. You may find it difficult to charge iron, copper or aluminium objects by this process because electrons in these substances are held very tightly. अब देखिए पहला मेथड हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए जैसे कि आपने बलून को रब किया एक पीस ऑफ क्लॉथ के साथ, ये आपका एग्जांपल है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन। तो जो मोशन है क्लॉथ का अगेंस्ट द बलून, वो चार्ज को क्या करता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट में सेपरेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लॉथ के, वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द बलून। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ से करते हैं, क्लॉथ से बलून में। तो अब जो रिजल्टिंग चार्ज होगा क्लॉथ में वो कौन सा हो गया, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में बन गया आपका, बलून पे। इबोनाइट रॉड को रब करेंगे अगर आप फर से, तो फ्रिक्शन क्या है, दोनों चार्जेस को सेपरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होंगे फर से रॉड की तरफ, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो फर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स तो उसने लूज कर दिए।
अब ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क से तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे अपनी ग्लास रॉड से सिल्क में। ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज है और जो आपका सिल्क है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब दो बॉडीज़ को रब किया जाता है तो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं एंड जो चार्ज एक्वायर वो करते हैं वो इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट होते हैं। ओके एंड जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इन सब्सटेंस में काफ़ी टाइटली हेल्ड होते हैं। ओके Activity 3. Take a glass rod and charge it by rubbing it with silk cloth. Suspend this charged glass rod from a support by a silk thread. Charge another glass rod and bring it near the suspended rod. You will observe that the suspended rod is repelled. This is shown in figure 8.6 here. We repeat the experiment by using two ebonite rods instead of glass rods. One of these is rubbed with fur and suspended. The other, also rubbed with fur, is brought near it. This time also the suspended ebonite rod is repelled. This is shown in figure 8.6b. We now suspend a charged glass rod and bring a charged ebonite rod near it. We observe that the suspended glass rod gets attracted. This is shown in figure 8.6c. देखिए करना क्या है, ग्लास रॉड को लेना है, उसको चार्ज करेंगे by rubbing it with silk cloth. अच्छा, अब ये जो चार्ज ग्लास रॉड है इसको हम क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे सपोर्ट से बाय सिल्क थ्रेड। अब दूसरे ग्लास रॉड को चार्ज करना है, उसको सस्पेंडेड रॉड के पास लेके आना है, तो देखिए क्या होगा उसमें, दिस वन ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड दोनों में सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा, राइट। ओके, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे दो इबोनाइट रॉड्स को इंस्टेड ऑफ ग्लास रॉड्स। इबोनाइट रॉड हमने ले लिया, ओके, एक को रब करेंगे फर से और सस्पेंड करेंगे, दूसरे को रब करेंगे फर से और पास में लेके आएंगे। दिस टाइम क्या होगा, इबोनाइट रॉड भी रिपेल होगा बिकॉज दोनों में सेम चार्ज है कि रिपल्शन होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि चार्ज ग्लास रॉड को लेकर आना है इबोनाइट रॉड के पास, दोनों ही चार्ज है। अब इनमें देखिए क्या होगा, रिपल्शन नहीं होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा, ओके और दोनों ही रॉड्स जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दोनों के बीच कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Number 2, charging by conduction. Charging by conduction involves the direct contact of objects. In conduction, electrons flow through one object to another object. In other words, a body gets charged when it is brought in contact with a charged body. Certain materials allow electrons to flow freely. Materials that permit electric charges to move easily are called conductors. Most metals are good conductors of electricity. Silver, copper, aluminium, and mercury are among the best conductors. Materials that do not allow electrons to flow freely are called insulators. Good insulators include rubber, glass, wood, plastic, and air. From the figure given alongside, you shall observe that in charging by conduction, the charged body transfers a similar charge to the other body. अच्छा देखिए, जो चार्जिंग होता है बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ऑब्जेक्ट का, ओके। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी कि एक जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है जब इसको हम किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली फ्लो करें, ओके। तो वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को परमिट करते हैं कि वो ईजिली मूव करे, वो कंडक्टर्स होते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मर्करी बेस्ट कंडक्टर्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में फ्रीली फ्लो करने को अलाउ नहीं करते वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं। गुड इंसुलेटर्स में आपके आते हैं रबर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एंड एयर, ओके। नंबर 3, चार्जिंग बाय इंडक्शन. When a charged body is brought near another body but not touched, the other body can be charged. This method of charging a body by bringing a charged body near it is called charging by induction, where the charge acquired by the neutral body is opposite to that of the body that induces it. For example, a negatively charged ebonite rod can pick up tiny pieces of paper by induction. अच्छा देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि चार्ज बॉडी को ना पास लेके आना है दूसरी बॉडी के, बट उसको टच नहीं करना है। जैसे कंडक्शन में तो हम टच कर रहे थे बट टच नहीं करना है, तो जो दूसरी बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगी। तो ये होता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहाँ पे चार्ज जो एक्वायर करता है न्यूट्रल बॉडी वो ऑपोजिट करता है उस बॉडी के, दैट इंड्यूसेस इट।
जैसे कि जो नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड को आप लेंगे तो वो क्या करेगा, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को वो पिक करेगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन. The electric charges in the paper are rearranged by the approach of the charged ebonite rod. The electrons in the area of paper nearest to the rod are repelled, leaving the positive charges near the rod. As the positive charges are closer to the negative rod, the paper is attracted. From figure 8.8, you shall observe that in charging by induction, the charge acquired by a body is opposite to that of the charge from the body that induces it. अच्छा देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पेपर में वो रीअरेंज हो जाते हैं बाय द अप्रोच ऑफ चार्ज इबोनाइट रॉड. अब इलेक्ट्रॉन जो आपके पेपर के एरिया में होंगे, नियरेस्ट होंगे जो उसके रॉड के, वो रिपेल हो जाएंगे, जिससे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके रॉड के पास रहेंगे. तो पॉजिटिव जो चार्जेस है वो आपके नेगेटिव रॉड के पास होंगे एंड पेपर गेट्स अट्रैक्टेड. ओके, जैसे कि आपको फिगर जो लास्ट पेज में आपको दी गई थी उसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है तो चार्ज एक्वायर करता है बॉडी इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी दैट इंड्यूसेस इट. राइट. नेक्स्ट 8.4, द इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्शन ऑफ चार्ज. An electric charge can be detected by an instrument called an electroscope. It consists of a metal rod with a knob at the top and a pair of thin metal leaves at the bottom. The rod is inserted in a one-hole rubber stopper which fits into a flask. The flask contains the lowest part of the rod and the metal leaves. See figure 8.9. This is your electroscope. Electroscope आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए. इसमें एक मेटल रॉड होता है, नॉब होता है, ठीक है, जिसमें एक नॉब होता है टॉप पे एंड पेयर होता है ऑफ थिन मेटल लीव्स एट द बॉटम. रॉड इंसर्ट की जाती है एक वन होल रबर स्टॉपर में विच फिट्स इनटू अ फ्लास्क. ओके, एंड फ्लास्क में आपका होता है जो लोअर पार्ट होता है रॉड का एंड द मेटल लीव्स. इन एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप द लीव्स हैंग स्ट्रेट डाउन. When a charged object touches the metal knob, electric charges travel down the rod into the leaves. Leaves get spread apart, indicating the presence of an electric charge. Since the charge on both the sides is the same, the leaves repel each other and spread apart. अच्छा देखिए, कोई भी आपका अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, दिस वन, ये क्या है आपका अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, तो लीव्स देखिए, जो इसकी दो लीव्स है वो एकदम स्ट्रेट है. राइट. लेकिन जैसे कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप टच कराएंगे, जैसे सेकंड केस में हमने इसे टच कराया, और किससे टच कराया, देखिए नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड है, तो अब वो चार्ज फ्लो करेगा. राइट, फ्लो करेगा तो जो आपकी लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि चार्ज आपका वहाँ तक फ्लो हो गया. अब एक जो लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, स्प्रेड अपार्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड्स में क्या है, सेम चार्ज है. एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय कंडक्शन. A charged object is brought in direct contact with the knob of the electroscope. For example, if a negatively charged ebonite rod touches the knob, electrons from the charged ebonite rod move to the knob of electroscope and then down the metal rod to their metal leaves. The leaves gain a negative charge, repel each other and spread apart. जैसे कि अब मैंने इस केस में आपको सेकंड केस में बताया था. राइट, किससे इसको टच कराया था, नेगेटिवली चार्ज ebonite rod से, सेम चार्ज आ गया and the leaves will move apart. If a positively glass rod touches the knob of the electroscope, free electrons in the leaves and metal rod are attracted by the glass rod. The metal rod and the knob conduct these electrons out of the electroscope to the glass rod. The loss of electrons causes the leaves to become positively charged. They repel each other and spread out. अब देखिए, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज अब हमने किससे कराया, पॉजिटिवली चार्ज हम ग्लास रॉड से टच कराया. ओके, तो अब क्या होगा कि जो आपके लीव्स है, these metal leaves, उनमें पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे. अगेन सेम चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर. ओके, टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, let us assume that the leaves of the electroscope have gained a negative charge. Now bring the body to be tested close to the knob of the electroscope. If the divergence of the leaf increases, it has same charge as the electroscope. That is negative in this case. If the divergence decreases, it has the opposite charge on the electroscope. That is positive in this case. देखिए, अब आपको कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि चार्ज का नेचर क्या है, मीन्स वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और वेदर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. तो आपको क्या करना है, हम अज्यूम करेंगे जो लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप की
उन्होंने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया. ओके, वी हैव अज्यूम्ड दैट. अब आप इनके पास लेके जाएंगे एक बॉडी को जिसको हमने टेस्ट करना है इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब के पास. अब अगर डाइवर्जेंस जो है जो लीव्स का वो बढ़ेगा, दैट मीन्स इसमें सेम चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप में है, यानी कि नेगेटिव चार्ज. अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ऑपोजिट चार्ज है, दैट मीन्स पॉजिटिव. Activity 4. Make your own electroscope. Method. Take a small, clean and dry jam bottle. Make a small hole in the center of its lid. Bend a piece of copper wire in L shape and pass it through the hole in the cap. Cut a thin strip 0.3 to 1 centimeter from an aluminium foil and hang it on the L-shaped wire. As shown in the figure, close the bottle. Your electroscope is ready. आपको एक छोटी साफ और ड्राई जैम बॉटल लेनी है, छोटा सा होल करना है लिड, उसका जो लिड होता है उसका सेंटर में. ओके, फिर आपने एक पीस है कॉपर वायर का लेना है, उसको बेंड करना है एल शेप में और उसको पास करना है उस होल के थ्रू कैप में. फिर एक पतली सी स्ट्राइप कट करनी है एक एल्यूमिनियम फॉइल की और उसको हैंग कर देना है वो जो एल शेप्ड वायर है ना उसमें. फिर बॉटल को क्लोज करना है, आपका इलेक्ट्रोस्कोप रेडी है. Rub a plastic scale with cloth and touch the metal knob of the electroscope with it. Charge from the scale will travel through the copper wire to the aluminium foil and it will show divergence. This is charging by conduction. Now touch the top metal cover. The charge from the foil will travel through your body to the ground and the foil will collapse again as the foil gets discharged through earthing. तो देखिए जब आप बनाएंगे तो इस तरह से आपका ये apparatus बनेगा, राइट. आपने क्या करना है, प्लास्टिक स्केल को रब करना है क्लॉथ के साथ और मेटल नॉब को टच करना है जो इलेक्ट्रोस्कोप का मेटल नॉब है. ठीक है, फिर आप इसको चार्ज करेंगे. जो चार्ज होगा स्केल का वो ट्रैवल करेगा कॉपर वायर में. ओके, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम फाइल तक और ये क्या शो करेगा, डाइवर्जेंस. ये कंडक्शन से हमने चार्ज किया. अब आपने जो टॉप मेटल कवर है ना उसको टच कर दीजिए. तो जो चार्ज है फॉइल का वो ट्रैवल कहाँ करेगा, थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड एंड जो फॉइल है वो कोलैप्स हो जाएंगे. तो फॉइल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू अर्थिंग. Flow of charge. A conductor like copper and most other metals transfer charges. Touching a charged body with a conductor is one of the methods of transferring charges. If we touch the knob of an electroscope with the finger, the gold leaf collapses. The human body is a conductor of electricity and on touching, the charge passes through our body to the earth. Touching therefore discharges the charged conductors. Most metals and graphite are conductors of electricity. Most non-metals do not conduct charges. देखिए कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं. अगर आपने एक चार्ज बॉडी को टच किया है कंडक्टर के साथ तो ये एक मेथड है जिसमें से चार्जेस को ट्रांसफ़र किया जाता है. जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप की नॉब को टच किया था फिंगर से तो गोल्ड लीफ कोलैप्स हो गई थी. तो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी जो है ना वो इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जब हम इसे टच करते हैं तो चार्ज जो है वो हमारी बॉडी से ट्रांसफ़र होते हैं, पास होते हैं अर्थ तक. तो टचिंग मीन्स जो है डिस्चार्ज हो रहा है चार्ज कंडक्टर्स का, चार्ज कंडक्टर को वो डिस्चार्ज करें. तो ज़्यादातर मेटल्स हैं या ग्रेफाइट्स हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और जो ज़्यादातर आपके नॉन मेटल्स हैं वो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करते. की पॉइंट्स. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ आइटम्स. द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन आइटम, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ हैव अ बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. द न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड आर न्यूट्रल. A force that pulls oppositely charged objects together is a force of attraction. A force that pushes similarly charged objects apart is a force of repulsion. The buildup of electric charge on an object is called static electricity. Like charges repel each other. Unlike charges attract each other. Remember that a neutral object develops an electric charge when it either gains or loses electrons. Objects can be charged by friction, conduction and induction. An electric charge can be detected by an instrument called electroscope. The human body is a conductor of electricity. Most metals and graphite are conductors of electricity. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.